Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrita Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 14, that is electric current and its effect. Students, in previous video we already had discussed how we can draw an electric circuit using the symbols of electrical component. Today we are going to discuss about the effects of electric current. In our syllabus there are two effects of electric current. What are they? The heating effect of electrical current and magnetic effect of electric current. So to understand this, what is the heating effect? Let's do a activity. Students, for this activity we require a electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. Okay, and you already know how we can prepare a electric circuit. It's very easy for all of you. Have a look here. We have to make a electric circuit like this. Here we connected two wires with the two terminals of cell, and one terminal get connected with bulb and one terminal get connected with one of the ड्राइंग पेन. ओके, और बल्ब से थर्ड जो हमारा कनेक्टिंग वायर है, इट विल गेट कनेक्टेड विद द अनदर ड्राइंग पेन दैट आई ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो. अब हमारा ये कनेक्शन, हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे स्विच का, विच इज प्लेइंग अ सेफ्टी पिन. ओके, अब हमें क्या करना है? व्हेन वी ऑन द स्विच, okay, that means the circuit is closed, then the bulb starts glowing. Okay, and when the bulb is glowing we just put it in such a mode for a few minutes, and when we switch off the circuit, then you will notice that the bulb stop glowing. Then you have to touch the bulb. You will feel that कि bulb become little bit hot, गर्म हो जाता है बल्ब. फिर उसके बाद आप इसको वापस से ऑन करिए, फिर थोड़ी देर बाद इसको बंद कर दीजिए. ठीक है, दैन यू अगेन फील दैट कि जब ये बंद होता है तो बल्ब हॉट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तब बल्ब क्या है? अब बल्ब आपको लाइट तो दे रहा है, बट विद लाइट इट इज गिविंग यू सम हीट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीट दैट बल्ब बिकम hot, little bit hot. And the precautions that you have to take here, that आपको बार बार for a long time you don't have to on the switch, because अगर ऐसा करेंगे तो आपका ये जो सेल है इसका जो पावर है it will discharge. Fine. So by this activity what we get it know कि that bulb is giving us light, but along with it become hot also. Okay, let's do another activity which is also very easy. What you have to do, you have to make another circuit like this. For that we require a long piece of nichrome wire and two nails, connecting wires. Fine. What you have to do, you have to just attach the two nails on a board. ओके, और इन दोनों नेल्स पे हम हमारा नाइक्रोम जो वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे. फाइन. और दोनों नेल्स से हमारे कनेक्टिंग वायर्स होंगे. कनेक्टिंग वायर नंबर 1 एंड इट इज 2 एंड इट इज अटैच विद द करंट सोर्स. दिस इज योर सेल. फाइन. एंड हियर इट इज आवर स्विच. राइट नाउ स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, दैट मीन्स हमारा सर्किट ओपन है. लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लो. ओके, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा वैसे ही हम थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे ये जो हमारा नाइक्रोम वायर है इट विल बिकम लिटिल बिट हॉट. फाइन. एंड when you switch off the switch, यानी हमारा सर्किट ओपन हो जाता है, then it will become again cool. फिर जैसे ही हम इसको वापस स्विच को ऑन करते हैं it will become hot. That means अब ये
पहली वाली एक्टिविटी में वो जो बल्ब का गर्म होना और इस वाली एक्टिविटी में नाइक्रोम वायर का गर्म होना, what it shows, both the activity shows that the wire gets hot when an electric current pass through it. Is that clear? You can write the bulb also कि बल्ब और जो वायर है ये दोनों के दोनों गर्म कब होते हैं, जब हमारे सर्किट से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट द वायर और द बल्ब बिकम hot, and this is the heating effect of electric current. Is that clear everybody? What is the heating effect of electric current? When the wire or the bulb become hot by the passing of the electric current, it is the heating effect of electric current. Is that clear? An electric heater contain a coil of wire. Yes, आप लोगों ने घर में पुराने ज़माने के रूम हीटर्स या जो जिन पे हम खाना बनाते थे वो हीटर्स देखे होंगे बेटा. जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनके अंदर जो एक कॉइल्स होती हैं ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लाल सी गरम सी, है ना, एंड दे आर गिविंग यू सो मच हीट. ठीक है, इसीलिए रूम हीटर्स हमारे रूम्स को हीट करने के काम आते हैं. सर्दियों में हम इन पे खाना बना लेते हैं, isn't it? And the wire, the coil which is present, the coil of wire which is present in these type of heater, it is an element of it. Okay, what is the element? The coil of wire which is present in the room heaters or in the heaters, it is known as the element. Is that clear everybody? And student, there are so many appliances which we are using in our day-to-day life. They are based on the heating effect of electric current. Okay, what are they, students? The immersion heaters, hot plates, iron, geysers, electric kettles, hair dryers. Fine. All these appliances are based on the heating effect of electric current. आपको स्कूल जाना होता है, आपको कपड़ों को आयरन करना होता है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट से प्लग को किया, स्विच ऑन किया, और आपकी जो आयरन है, प्रेस है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रेस कहते हैं, वो हॉट हो गई और आपने आराम से कपड़ों को आयरन कर दिया. अब हमें जो हमारी जो आयरन है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमें दिखते नहीं है, बिकॉज इट इज़ covered, and these type of coiled wires are present inside the electric iron. अब वो कोयले वाली जो आयरन होती है उसमें ये नहीं होता है, उसमें तो हम कोयले डालते हैं. This is the electric iron. Fine. Then it become hot and we just do our आयरन और क्लॉथ्स. ओके, आपने हेयर ड्रायर्स देखे हैं, आपने जो आपके पानी गर्म करने के गीजर्स हैं, इमर्जन रॉड्स हैं, all are based on the heating effect of electric current. Concept clear everybody? So we can say that when these appliances switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and gives out heat. The amount of heat produced in a wire depends on its material. Yes, कि आपका जो अमाउंट हीट प्रोड्यूस करता है वायर, वो डिपेंड करता है कि वो किससे बना हुआ है, एंड व्हाट इज़ इट्स लेंथ एंड व्हाट इज़ इट्स थिकनेस. समझ में आ गया? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ वायर, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, लेंथ and thickness of the wire. It's an important question, you have to remember it. Heating effect of electric current is clear to everybody. Students, along with these appliances, we already had discussed in activity 1 that when we switch on the circuit, the bulb start glowing. अब bulb light तो देता है साथ साथ, लेकिन जब हम उसको on condition में रखते हैं, उसके कुछ टाइम बाद वो bulb खुद भी गर्म हो जाता है. That means bulb is also producing the heat. But student, bulb जलता कैसे है? We know that there is a filament in the electric bulb. When this filament get heated such a high temperature that it starts glowing. Okay, and student, if the large current passes through a wire, that is that wire which is present inside the
bulb also. The wire may become so hot that it may even melt and break, and that's why your bulb become fuse. अब हमारा बल्ब फ्यूज हो गया क्योंकि हमारा फिलामेंट क्या होता है, वो टूट जाता है. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द सिंबल्स, इजंट इट स्टूडेंट्स. अब ये जो बल्ब होता है, दैट इंकेडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑफनली यूज फॉर लाइटनिंग. अब बट ये लाइट के साथ साथ हमें क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी. अब मेन पर्पस तो क्या है, लाइट, बट इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ हीट ऑल्सो. दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग more electricity, and that's why nowadays we are using CFL, LED, fluorescent tube lights. okay, इसका मतलब अब हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्लेस किसने कर दिया है, LED, that is light emitting diode. Please remember the full forms. The fluorescent tube lights, compact fluorescent lamps, जिसको हम short form में कहते हैं CFL. We are using them nowadays. अब इनका यूज़ ज़्यादा हो गया है. इन्होंने टेक ओवर कर लिया है किस पे, इलेक्ट्रिक बल्ब पे. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो LED है ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिक बल्ब, कंपैरेटिव टू CFL. ओके, अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारा जो बल्ब होता था उसमें फिलामेंट होता था, लेकिन ये जो आपकी CFL हैं, आपकी फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट्स हैं, इनके अंदर जो फिल होता है इट इज़ अ टॉक्सिक material, that is mercury vapor, and that's why इनका डिस्पोजल प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है. देखो बेटा, अगर हमारे घर में नॉर्मल बल्ब टूट जाता है तो हम सिंपल से उसको साफ़ कर देते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन अब CFL है आपकी और आपकी जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स हैं, दे कंटेन द मर्करी वेपर्स, और हमें पता है मर्करी इज़ अ मेटल एंड इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर. दैट्स वाई द डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. ठीक है, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं बट नेचर इज टॉक्सिक. इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, हम जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने एक साइन देखा होगा ऐसा. दिस इज व्हाट, दिस इज ISI मार्क. ओके, सारे के सारे जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लायंसेस या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर ये साइन होना बहुत ज़रूरी है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंड अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ कॉल्ड ISI मार्क. फाइन, दिस इज़ द symbol, okay, which is the assurance of conformity to the specification given on the product. Okay, is that clear? It is therefore suggested to use the ISI mark products. ठीक है, हमें ISI mark products ही use करने चाहिए. Students, you all know और यू ऑल हर्ड अबाउट द फ्यूज़. हम हमारे घर में या कभी भी किसी बड़े इलेक्ट्रिकल जो हमारा अप्लायंस होता है उसमें आपने कभी सुना होगा कि इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया है, इसका फ्यूज़ उड़ गया है. व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़? नॉर्मली जो फ्यूज़ होता है इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसके लिए क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है. सो वी कैन से अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच prevents damages to the electrical circuits and possible fires. अब इसको समझो, ये फ्यूज़ होता क्या है. देखो, हैव अ लुक हियर. ये पुराने ज़माने का फ्यूज़ है, ठीक है, समझ में आया. अब नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो हाई वोल्टेज पावर अगर आ जाता है, ठीक है, अगर हाई वोल्टेज पावर आ जाता है तो हमारे घर के अंदर जितने भी
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, तो इनका अपना अपना एक पावर एक्सेप्ट करने का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी हाई वोल्टेज अगर हमारे घर में सप्लाई हो जाए या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आ जाए तो इट विल गेट डैमेज, ठीक है। उस डैमेज से बचाने के लिए या कभी कभी शॉर्ट सर्किट्स भी हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए हम हमारे घर के मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सर्किट पे फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़ बेसिकली होता क्या है, हमारे फ्यूज़ में हम यहाँ पर एक वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस वायर इज़ हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही आपके पास हाई वोल्टेज करंट आता है, दिस वायर विल ब्रेक डाउन, इट विल मेल्ट, ये मेल्ट होगा और आपका जो सर्किट है इट विल ओपन। इसका मतलब जैसे ही करंट इससे सप्लाई हुआ, हाई वोल्टेज करंट आया, तो ये तार क्या होगा, ये पिघल जाएगा और आगे का सर्किट टूट जाएगा, जिससे कि आगे के पूरे आपके घर में और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो करंट सप्लाई नहीं होगा। देयर इज अ ब्रेकडाउन। Is that clear? So students, wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. Is that clear? और normally ये जो फ्यूज़ वायर्स होते हैं, ये जो हमारे कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे कनेक्टिंग वायर्स तो कितना करंट सप्लाई करते हैं, कितना वोल्टेज आता है, तो भी मेल्ट नहीं होते हैं। दे आर इंसुलेटेड। आपने देखा है ना, उन कनेक्टिंग वायर्स पे एक अलग से कोटिंग होती है प्लास्टिक की, फाइन। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैम, ओके। These wires are used for making electric fuses। और आपने अपने बिल्डिंग में या जो पुराने घर हैं जहाँ पे पुरानी इलेक्ट्रिक फिटिंग है, वहाँ पर ऐसे फ्यूजेस देखे होंगे, ठीक है। In the buildings, fuses are inserted in all electrical circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit। ठीक है, अब अगर उस एक्सीड लिमिट से ज़्यादा का करंट आपने सप्लाई किया, वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई किया, तो ये फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाता है और आगे की सारी करंट सप्लाई ब्रेक डाउन हो जाती है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? If by accident the current exceeds its safe limit, the wire become overheated and may cause fire. Okay, if proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. Okay, student, अब हम डिफरेंट फ्यूजेस देखे होंगे आपने। कई बार आपने ऐसा फ्यूज़ भी देखा है और ऐसा फ्यूज़ भी देखा है। तो हम ऐसे फ्यूजेस को तो हम हमारे घर में काम में लेते थे, लेकिन इस तरह के जो फ्यूज़ होते हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर करंट का एक्सीड लिमिट से ज़्यादा करंट सप्लाई होता है, दैन दिस वायर मेल्ट, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ही करंट सप्लाई करना बंद कर देगा, क्योंकि कनेक्टिविटी ही टूट गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेज अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था यहाँ पर, कि अगर फ्यूज़ वायर, अगर फ्यूज़ उड़ गया है, हम यही टर्म यूज़ करते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो हमें फिर से नया फ्यूज़ वायर लगाना पड़ता था, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज करंट आया और फ्यूज़ उड़ गया तो हमें इनको मैनुअली इनको वापस लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल हमारे पास स्मार्ट फ्यूजेस आ गए हैं, दैट इज़ द MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। जैसे ही करंट आपकी जो लिमिटेड वो है उससे एक्सीड करता है, तो ये अपने आप डाउन हो जाते हैं और अपने आप जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लो का जो सर्किट में है वो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और आप इसको वापस ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूज़ वायर को वापस लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। These days MCBs, that is the miniature circuit breakers, are increasingly being used in place of fuses. These are the switches which automatically turn off when the current in the electric circuit
exceeds the safe limit. Is that clear? और हमें ये भी कैसा लेना है, ISI मार्क का लेना है. जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं, चाहे स्विच हो, चाहे वायर, चाहे आपके और अप्लायंसेस हों, आपको कैसे लेने हैं, ISI mark. So the concept of fuse is clear. Along with this, the heating effect of electric current is also clear. Let's understand the magnetic effect of electric current. Students, बहुत सरप्राइजिंग या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा क्या, क्या कोई चीज़ एज अ मैग्नेट बिहेव करती होगी क्या? ओके, यस, इट इज़ ट्रू. स्टूडेंट्स, व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ वायर, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एंड it was first noticed by a scientist, that is Hans Christian Ørsted. ठीक है, he was the scientist who first time noticed that when we are passing a current through a wire, then it starts behaving like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. To understand this, let's perform our activity. And this activity is very easy. What we have to do, we have to take a cardboard box like this, and from where we can get it, from our matchbox. Matchbox के अंदर जो डिब्बियाँ होती हैं जिसमें matchsticks रखी रहती हैं, it is this, okay, and inside it we have to put a small compass. अब हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, वायर को रैप करेंगे, एंड देन वी गेट कनेक्टेड इट विद द इलेक्ट्रिक सर्किट. कैसे? वी आर हैविंग द सेल, switch and bulb here. Students, you all know that कि हमारा जो कंपास होता है, it shows you the direction north to south. फाइन. और लेकिन जब आप कंपास के पास एक बॉब मैग्नेट लेके आते हैं, देन इट स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, isn't it? ठीक है, अब आपने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए करी है कि भाई आपका जो मैग्नेटिक निडल है, इट इज़ इन NS पोजीशन. ठीक है, आपका ये जो कंपास है, ये क्या है, इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट बेसिकली. जब हम इसके पास में एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, दैन द निडल्स शो यू द डिफ्लेक्शन. ओके, अब क्या करना है, आपको बार मैग्नेट को हटा लेना है. यू नोटिस दैट कि भाई बार मैग्नेट को पास लाने पर क्या होता है, व्हेन यू ऑन द स्विच एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, then you will notice that कि this wire will become a magnet, and you will notice that there is a deflection. That shows that कि that wire starts behaving like a magnet. Is that clear everybody? इसका मतलब क्या है कि जब हम बार मैग्नेट कंपास के पास लेके जा रहे थे तो उसकी निडल्स रिफ्लेक्शन शो कर रही थी. उसके बाद हमने बार मैग्नेट को हटा लिया. जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, then you will also notice that कि there is a deflection in the needles of the compass. That means कि आपका वायर भी कैसे बिहेव कर रहा है, it is also behaving like a magnet. Is that clear everybody? Students, अब हम सेकेंड एक एक्टिविटी करते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. हमें क्या करना है, वी हैव टू, हमें एक बड़ा नेल लेना है. ठीक है, बड़ी जो कील होती है ना, वो लेनी है. उसकी चारों तरफ हम क्या करेंगे, वायर को रैप कर देंगे. ठीक है, हमें इसका वही कॉइलिंग करनी है. हम वायर को रैप कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग अ कॉइल बेसिकली. इसको भी हम क्या करेंगे, सर्किट से कनेक्टेड कर देंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेल के जस्ट पास में हम कुछ ऑल पिन्स या ड्राइंग पिन्स रख देंगे. एंड वी नो ऑल पिन और ड्राइंग पिन आर द मैग्नेटिक मटेरियल, isn't it? फाइन. और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, you will observe that all these all pins will cling with this nail. That means a magnetic field is produced around this nail, and that is behaving like a magnet. It will attract the magnetic material, that is the all pins or the drawing pins which are nearby it. ये इसके
चिपक जाएंगी, ठीक है। फिर आपने स्विच को ऑफ कर दिया, देन आपका ये वापस से अलग हो जाएंगी, आपकी जो ऑल पेन्स हैं, ये जो ड्राइंग पेन्स हैं, इससे समझ में आ रहा है। फिर आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, फिर ये वापस से इसके साथ चिपक जाएंगी। दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड और दिस नेल, दैट वायर which is wrapped around the nail, it is behaving like a magnet and this is known as electromagnet. समझ में आया, ये है आपका electromagnet. Is that clear everybody? Students, we can say that the electromagnet is formed because of the magnetic effect of the electric current. Every magnetic material has a magnetic field up to which the influence of its magnetism can be experienced. समझ में आ गया? Isn't very interesting? हम करके देख सकते हैं इसको practically. A magnet whose magnetic field is generated with the help of electric current is known as electromagnet. समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इट इज अ मैग्नेट विच whose magnetic field is generated with the help of electric current is known as electromagnet. Students, let's discuss the applications of electromagnet. अब there are so many uses of electromagnet in our day-to-day life also. आप लोगों ने देखा है कि क्रेन्स भी बहुत बड़े बड़े आपके मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको उठाने का काम करती है. You can sort out some magnetic material from the heap of the garbage also, isn't it? So what are the uses of electromagnet? The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. Okay, the end of crane has a strong electromagnet attached to it. The electromagnet are also used to separate magnetic materials from the junk. Have a look here. ऐसे आपकी जो क्रेन्स होती हैं, they are collecting, they are sorting your magnetic material from junk. Okay, students, along with this, doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eyes. अगर आपकी आँखों में कोई magnetic material गिर जाता है, सिंपल सी बात है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर टाइनी मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं. आप लोगों ने सुना भी होगा CT स्कैन, MRI, isn't it? तो what are they? They are also the electromagnets. देखा है ना, वो एक टनल से में मतलब पेशेंट जाता है अंदर और फिर अंदर बहुत डीप सा साउंड होता है. What are they? They are the electromagnetic applications. Okay, students, many toys are also having electromagnets inside them. Yes, आपकी जो रिमोट कंट्रोलिंग वाली कार्स होती हैं ना, उनमें भी होता होगा. नॉट एग्जैक्टली, मतलब टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं और उनमें से सबसे अच्छा जो एक अप्लायंस जो हमारे स्कूल में यूज़ होता है, दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिक bell. Din 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 tin tin tin, isn't it? We are waiting for our lunch, we are waiting for our what? To of the school, isn't it? Have a look on the circuit of electric bell. It's very easy to understand. बाहर से अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक बेल ऐसे दिखता है, बट वी हैव टू लर्न द सर्किट डायग्राम. अब सर्किट डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? देखो, वी आर हैविंग अ गोंग हेयर, जिसके ऊपर आपका आकर हैमर चोट करेगा, यानी उसके ऊपर आके अटैच होगा और जिससे आपको साउंड सुनाई देगा. ओके, एंड हियर वी आर हैविंग द आयरन ओवर विच द वायर इज रैप. ओके, एंड इट इज वर्किंग लाइक एन electromagnet. Okay, we are having a switch, it is connected with a battery. This is our electromagnet. Here we are having this iron strip. This is our iron strip, and here it is our contact screw. Okay, and this is our hammer. Structure समझ में आ गया? How it
परफॉर्म द फंक्शन? देखो, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करते ही हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ. वी आर हैविंग द बैटरी हियर. एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द wire which are wrapped around the iron piece, they start behaving like the electromagnet. यहाँ पर हमारे पास क्या है? आयरन स्ट्रिप. जैसे ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही ये इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये इसकी पास आएगी ऐसे. जैसे ही आयरन स्ट्रिप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ आएगी, दैट मीन्स the electromagnet start attracting the magnetic material, that is our iron strip. It is the soft one. Okay, फिर जैसे ही ये इसके साथ attract होगी, then our hammer automatically incline towards the gong. Okay, फिर जैसे ही ये gong की तरफ आएगा, there will be disconnection of the screw with the iron strip. Is that clear? ठीक है. और जैसे ही ये स्क्रू से इसका कनेक्शन, ये जो कांटेक्ट है, ये ब्रेक हुआ, क्या होगा? देन द हैमर विल कम बैक अगेन. और अभी भी हमारा स्विच क्या है? ऑन है. इट अगेन स्टार्ट बिहेविंग लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अगेन द मैग्नेटिक द आयरन स्ट्रिप विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अगेन द हैमर विल इंक्लाइन ऑन गॉन्ग. फिर से हमें टर्न की, दैट मीन्स इट विल रिपीट. ठीक है, एक बार आया, इस पे गॉन्ग पे चोट मारी, आपको साउंड प्रोड्यूस हुई, ट्रिन आवाज आई. फिर क्या हुआ? कांटेक्ट स्क्रू से आपका कांटेक्ट टूटा, दैट मीन्स अब हमारा क्या हुआ? फिर वापस से आपका स्विच अभी भी ऑन है. जब तक आप उसको दबा के रखते हैं इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को, तब तक वो यही प्रोसेस करता है. ठीक है, कांटेक्ट स्क्रू से आपका कांटेक्ट टूटा, फिर क्या होगा? हैमर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आया. फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट ने आपकी आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट किया. फिर से हैमर जाके क्या होगा? गॉन्ग पे टकराएगा, फिर से साउंड प्रोड्यूस होगी. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस हाउ अ इलेक्ट्रिक बेल वर्क. इज दैट क्लियर everybody? Again, just read it carefully. A coil of wire wound over an iron piece that formed the electromagnet. An iron strip, the soft iron armature which has a hammer attached to it, which is joined to the wire coil. Okay, a contact screw through which is attached to the iron strip. समझ में आ रहा है? Structure is very easy to understand. A battery which connects the wire coil and the contact screw. Okay, a switch in the middle of the circuit. In the process, the hammer at the end of the strip strike the gong of the bell to produce a sound. वो टिन, वो डिंग वाली आवाज आती है ना, वो तभी आती है जब हैमर गॉन्ग पे स्ट्राइक करता है. Okay? However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. समझ में आ गया? क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट स्क्रू से कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है. The current through the coil stop flowing. The hammer strike the gong every time the circuit is completed, and this is how the bell rings. सिंपल सा कंसेप्ट है. इज इट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, विद दिस इलेक्ट्रिक बेल the effects of electric current complete. I hope the heating effect of electric current and magnetic effect of electric current is clear to everybody. Learn and revise them. In the coming video, we will discuss the question answers of this chapter. Okay? Till then, everybody take care yourself. Bye.